So again, I, Anjum Bhatt Nirban, welcomes you to join the class of English Literature. Today we are going to start chapter number 5, which is Mullah Nasruddin and the Knave. It is a very interesting story. So without further delay, let's read the story. Mullah Nasruddin is a wise man for Persian folklore. Persian folklore means ancient story. It is a kind of ancient story, Purani story hai, just like Birbal from ancient India. Have you ever heard about Birbal, Akbar and Birbal? So this story related to that story. Okay. There are numerous story means बहुत सारे stories है about him. About him, who is him here? Mullah Nasruddin. Okay. He's very wise, or he was very wise person where he uses common sense and presence of mind to overcome difficult situation. Overcome means to win or to control all the difficult situation. Okay, Mullah Nasruddin was a very uh, kind of wise person who always can overcome the difficult situation. This is one of them. और ये story भी हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये भी उनमें से ही एक स्टोरी है. मुल्ला नसरुद्दीन वाज अ लोकल प्रिस्ट इन स्मॉल विलेज. प्रिस्ट का मतलब होता है लाइक अ पुजारी या फिर कोई अपने रिलीजियस में परफेक्ट होना, स्कॉलर होना. ओके, विलेज हु लिव्ड इन एक्सट्रीमली पुअर्टी, जो बहुत ही गरीब था. ही वाज वेरी पुअर पर्सन. नो वन न्यू वेदर ही वॉज अ मैडमैन. कोई नहीं जानता था या तो वो एक मेंटली इल पर्सन है या फिर वो सेज यानी साधु टाइप कोई पर्सन था. He sorry, because his way were very unconventional. Conventional meaning is different from the usual things. Okay, everyone. His mind was so engaged in spiritual pursuit. The pursuit means to follow things. So spirituals mean related to affairs the spirit rather than the body. Means अपने religious thing को ज़्यादा मानता था वो. He never took time to think about the material comfort. और वो कभी भी material comfort zone जो होता है यानी चीजें लेना, पहनना, अच्छे से खाना, पीना, उन पर believe नहीं करता था. The debts meaning होता है money owned, जिससे उसने कर्ज लिया था, जो money उसने लिया था उधार. accumulated means to increase, बार बार increase होते जा रहा था, मतलब वो चुका नहीं पा रहा था, काम तो कुछ नहीं करता था. सो जो मनी था उसका वो सारा क्या हो गया था, इंक्रीज होता जा रहा था डे बाय डे. एंड हिज क्रेडिट क्विकली वेनिस्ड, और जो उसके पास अमाउंट था वो भी खत्म होता जा रहा था. बिकॉज ही डिड नथिंग until eventually he had no alternative but to sell his ancestral home. अब उसके पास कुछ नहीं बचा था एक्सपेक्ट his एंचेस्ट्रल होम. एंचेस्ट्रल मतलब पूर्वजों का घर. रिलेटेड टू वंस फोरफादर्स, यानी हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एंचेस्ट्रल. तो उसके जो फादर का जो बनाया हुआ घर था उसके अलावा उसके पास कोई भी मनी नहीं बचा था. Nasruddin's neighbor was crooked man with a large bushy mustache and he knew all about the man's financial difficulties. यानी जो नसरुद्दीन का जो नेबर था, पड़ोसी था, ही वॉज वेरी क्लेवर. क्रूड मैन मीन्स क्लेवर, कनिंग पर्सन. एंड उसके बहुत लंबी से मस्टास थी, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी मूछें थी. एंड ही न्यू एवरीथिंग अबाउट नसरुद्दीन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. वो सारी सिचुएशन जानता था कि नसरुद्दीन कैसे फाइनेंशियली वीक है. He thought he could take advantage of the situation. Now what he was thinking, that he should take the advantage of his situation. He want to help you, good neighbor. I want to help you as a good neighbor. यानी neighbor गया उसके पास and कहने लगा कि I want to help you. I will buy the house from you even though I don't really have any interest in it. और मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ बट मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे लोअर प्राइस में मुझे आप अपना घर सेल कर दीजिए. The man offered a pitiful price. Pitiful meaning here बहुत ही lowest price में उस घर को खरीदना चाहा. मुल्ला नसरुद्दीन looked delighted and drew a small piece of paper from the fold of his clothing. मुल्ला नसरुद्दीन happy हो गया और क्या किया उसने, एक अपने पॉकेट में से एक folding paper निकाला और उसे दे दिया. God bless you with long life and healthy progeny for this generous gesture. Means progeny here meaning is
वंस चिल्ड्रन, यानी उसने बहुत अच्छी उसको ब्लेसिंग्स दी और खुद जेस्टर यानी इशारे से उसको कुछ बोलना चाहा। द हाउस शैल बी योर्स, हाउस सब तुम्हारा होगा, एज सुन एज वी टेक केयर ऑफ द लिटिल क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट। हियर मीनिंग ऑफ क्लॉज मीनिंग इज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कि नसरुद्दीन बहुत ही क्लेवर था वो भी। उसने क्या किया कि एग्रीमेंट पर वो घर देना चाहा। उसने क्या एग्रीमेंट दिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, देखिए व्हाट क्लॉज आज द नेबर्स सस्पिशियसली, नेबर ने उससे पूछना चाहा आप कैसे क्लॉज की बात कर रहे हो। Only a very small thing. This house was built by my father. Now Nasruddin replied that this house was built by my father. So I want one thing, a very small thing. A fine gentleman, he was always paid in cash. और वो बहुत ही जेंटलमैन थे। एंड यू सी हियर ऑन द वॉल ऑफ द लिविंग रूम देयर इज वन नेल स्टिकिंग आउट। आप देख सकते हो लिविंग रूम में एक नेल लगा हुआ है। नेल मतलब एक कील लगी हुई है। माय फादर नेवर हैड अ चांस टू फिनिश हैमरिंग इट इन। मेरे फादर कभी भी उसको हैमर यानी उस पर हथौड़ी मारने का कोई भी चांस नहीं गवाते थे। इस नेल को हमेशा वो फिक्स ही रखा करते थे। ही हैड अ हार्ट अटैक एंड डाइड, एंड उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो मर गए थे। So here there is a story behind the nail. So I want about the situation according to the nail. I therefore request that I be allowed to keep ownership of that nail. अब उसने देखो क्या रिक्वेस्ट की कि मैं घर तो तुम्हें दे दूंगा लेकिन ऑनर इस नेल का मैं ही रहूंगा क्योंकि ये आखिरी निशानी है मेरे फादर की। सॉरी आई फॉरगॉट टू रीड वन लाइन। God rest his soul. Okay, soul. The neighbor looked as contrite as he could. Contrite meaning here is feeling sorry for something that you have done. अब जो नेबर था उसको बड़ा ही फील पिटी हुआ कि इसके फादर की डेथ हो गई बाय हार्ट अटैक। सो उसको थोड़ा फील पिटी हुआ उसको लेकर। ओके, then I therefore request that I be allowed to keep ownership of that nail and do whatever I want with it. और मुझे अलाउ कर दो कि ये नेल मेरा ही है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, घर भले ही आप रख लीजिए। किसने कही ये बात? नसरुद्दीन ने कही नेबर को। द नेबर एग्रीड बट एक्सप्लेन दैट ही वुड हैव टू कंसल्ट हिज वाइफ बिफोर साइनिंग। नेबर तो एग्री कर गया बट ही आस्क्ड वन थिंग दैट आई वुड आस्क माय वाइफ बिफोर साइनिंग, कि मुझे मेरी वाइफ से पूछ लेना चाहिए कि मैं इस पेपर पर साइन करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ से इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। His wife raised some serious objection. अब उसकी वाइफ ने बहुत ही सीरियस ऑब्जेक्शन उठाया। Why he is going to keep a nail? वो घर में नेल क्यों रखना चाहता है? What does it mean? इसका मतलब क्या है? He just want to be allowed to keep and worship. Worship मतलब उसकी वो worship करना चाहता है, पूजा करना चाहता है his nail from time to time. That's all. क्योंकि ये nail उसकी father की निशानी है तो वो time to time उसकी worship करना चाहता है। He is crazy, said his wife. Maybe so. हाँ ऐसा हो सकता है but we are getting the house of half its value. हम क्या कर रहे हैं, जो neighbor है वो अपनी wife को क्या कह रहा है कि हमें ये half value में घर मिल रहा है तो उसमें कोई problem नहीं है, हम करने देते हैं उसको ये सब काम। So what's the problem if he wants to keep a small nail over here? The wife finally relented. Relented here meaning is agreed. Wife बाद में agree कर गई. The contract was signed और contract sign कर दिया गया and मुल्ला नसरुद्दीन moved out और मुन्ना नसरुद्दीन वहां से चला गया and to hand over his house to the neighbor. A month went by. कुछ टाइम निकल गया, एक महीना निकल गया। One evening they heard a knock on the door. एक शाम उन्होंने एक डोर पर आवाज सुनाई दी, डोर के नॉक होने की आवाज सुनाई। It was Nasruddin with head bowed, यानी हेड को झुकाए हुए। ये वहां बाहर कौन खड़ा था? नसरुद्दीन खड़ा था। Oh Mullah, where have you been? We were wondering about you like the crooked man. क्लेवर मैन वैसे तो खुश नहीं हुआ उसे देखकर, लेकिन ऐसे ही झूठ मूठ उसको क्या कहा, ओ कहाँ थे इतने दिन, हम बहुत खुश हुए तुम्हें देखकर, अंदर आइए। So he invited him.
Nasruddin explained that he had come to worship his nail and then man agreed to let him into the house. Nasruddin explain किया कि मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे नेल जो मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी वर्शिप करने के लिए. So the man agreed very first time and he let him into the house. उसे अंदर आने के लिए बोल दिया. The mullah humbly walked behind the man, bowed in front of the nail and put his turban on it. अब मुल्ला क्या करता है वो अंदर जाता है नील की तरफ और बाउट करता है एज अ वर्शिप एंड अपनी टर्बन जो पगड़ी होती है वो उतार कर उस पर हैंग कर देता है. As he was about to leave, जैसे ही वो जाने वाला होता है, the man questioned him. Who is the man over here? The neighbor, okay, who bought the house from the mullah. उसने क्वेश्चन किया, हे हे व्हाट इज दैट डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये अपनी टर्बन क्यों छोड़कर जा रहे हो. दैट्स माय टर्बन. जो मुल्ला ने क्या कहा, दैट्स माय टर्बन. यस बट यू कैन नॉट लीव इट इन माय हाउस. आप अपनी टर्बन को मेरे घर पर लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते. ऑफ कोर्स आई कैन, of course मैं कर सकता हूँ, said the mullah. He headed towards the door. It is on my nail. 2 weeks passed before Mullah Nasruddin next visit. अब ये मुल्ला क्या कहता है, ये मेरा नेल है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं इस नेल के साथ कुछ भी कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई आई हैंग अप माय टर्बन ओवर हियर. तो ऐसा कहकर मुल्ला चला जाता है और नेक्स्ट वीक फिर वापस आता है. Ah, good morning, Mullah. You have come to take back your turban, I presume. मुझे लगा, I thought कि आप अपनी टर्बन लेने आए हो. No, thank you, my dear friend. मैं मेरी टर्बन नहीं लेने आया हूँ. I have come to worship my nail. मैं again फिर से आया हूँ क्योंकि मुझे worship करनी है मेरे nail की. Once again he bowed before the nail and his worship finished. He hung a scarf on the nail along with his turban and turned to leave. अब नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, वापस वर्शिप करता है नेल की और इस बार वो अपना स्कार्फ उस पर हैंग कर कर चला जाता है अलोंग विद द टर्बन विच ही हैंग बिफोर द वीक. यानी पहले तो टर्बन उसने हैंग की, अब वो क्या हैंग करके जा रहा है, स्कार्फ उसके साथ साथ. The crooked man, जो clever man था, was not amused, but there was nothing he could do when Nasruddin claimed he was worshipping his dead father's nail. अब वो जो नेबर था वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि नेल तो नसरुद्दीन का ही है. The man twirled. Here twirl means to turn round and round. कुछ करने के अलावा सिर्फ राउंड लगाता था मुल्ला के आगे पीछे. And of his mustache and persuaded himself that this would be the last time. Persuaded means to make somebody believe something. खुद को मनाता था कि शायद ये लास्ट टाइम होगा, उसके बाद मुल्ला घर पर नहीं आएगा. If only because there was nothing more to make Mad Mullah could possibly hang on the nail. और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था मुल्ला, क्योंकि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे. हाँ, मुल्ला तो आता था, नसरुद्दीन आता था और आकर के अपनी चीजें वहां छोड़कर चला जाता था. Next, he slammed the door behind the departing pilgrim and hoped his wife would not be too angry. यानी slam means to shut the door. Okay, उसने अपना डोर बंद कर दिया जहाँ पे वो नेल लगा हुआ था एंड ये सोचने लगा कि उसकी वाइफ बिल्कुल भी गुस्सा ना करे उसके ऊपर. किसकी वाइफ, जो नेबर था. ओके, a week later मुल्ला नसरुद्दीन returned and bowed towards the nail. अब दोबारा मुल्ला आता है और वापस वही सेम वर्क करता है जैसे कि पहले किया करता था. Before turning to leave, he took off his coat and hung it on the nail along with the hat and the scarf. अब क्या करता है इस बार, वो कोट हंग करके चला जाता है, यानी अपने कोट को वहीं उस पर जो नेल थी उस पर छोड़ देता है. पहले उसने क्या क्या छोड़ा था, स्कार्फ एंड टर्बन, और अब इस बार वो स्कार्फ और अपनी हेड के साथ साथ अपना कोट भी वहीं छोड़कर चला जाता है. The wife was furious. Wife बहुत एंग्री हो जाती है and she upbraided her husband. And upbraided means scolded. अपने husband पर चिल्लाती है. Now look what he has done. He has done. अब देखिए वो उसने क्या कर दिया है. He is taking advantage of our kindness. No advantage of your weakness. वाइफ चिल्लाकर क्या कहती है कि देखो अब ये अपनी जो अपन काइंडनेस दिखा रहा है उसका एडवांटेज ही उठा रहा है, फायदा उठा रहा है और हमारी वीकनेस का भी फायदा उठा रहा है. बट वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. द अनहैप्पी हस्बैंड chewed at the right end of his mustache. We agreed that he can do whatever he wants with his nails. अब वो जो हस्बैंड है वो क्या कहता है कि हमने ही एग्री किया था
कि वो कुछ भी कर सकता है अपने नेल के साथ, अब हम उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। बट वी आर नॉट वाइफ, नाउ द नेल इज फुल। अब डरने की जरूरत नहीं है, ये जो नेल है ये फुल हो चुका है, इसमें कुछ भी हैंग करने की कोई भी वो कुछ भी हैंग नहीं कर सकता, क्योंकि नेल अब फुल हो चुका है थ्री ऑफ द थिंग्स। The next day, Mullah Nasruddin showed up again. Again, Mullah Nasruddin आता है. The man tried to shut the door in his face, but when he saw who it was, but Nasruddin had already placed his foot inside. जब मुल्ला नसरुद्दीन उसको देखता है तो वो डोर को बंद करने की कोशिश करता है, मतलब उसको एंटर करता नहीं है अपने घर के अंदर, पर मुल्ला नसरुद्दीन स्टेप्ड हिज वन फुट इनसाइड द होम, और मुल्ला क्या करता है अपना एक पैर घर के अंदर रख देता है। नथिंग वाज गोइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम द वर्शिपिंग हिज नेल, और कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है मेरे नेल की वर्शिप करने से। Oh God, you again. I do hope this is the last time. He tugged at the hair on his upper lip. उसने अपनी जो अपर लिप के हेयर थे उनको हिलाते हुए कहा कि शायद ये लास्ट टाइम है, अब उसके बाद आप यहाँ नहीं आओगे। Possibly replied Nasruddin with his usually benign smile. Benign मतलब kind smile के साथ उसने बोला। He entered dragging behind him the sack full of cow dung. Now again he came with the cow dung. क्या लेकर आया यहाँ पर? cow dung लेकर आया। dung होता है बेटा वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स बॉडी। इस बार वो बड़ा ही गंदी चीज लेकर आता है घर के अंदर। एंड हैंग इट ऑन द नेल, और अपने नेल के ऊपर उसको भी हैंग कर देता है। The wife went red with rage. वाइफ बहुत गुस्से में लाल हो जाती है and screamed at her husband, और अपने हस्बैंड पर चिल्लाने लगती है। Get that out of my house or I'm leaving you. इन सारे सामान को मेरे घर से बाहर निकालो, otherwise I'll leave you. या तो मैं जाऊंगी या फिर ये सामान इस घर से जाएगा। She scolded her husband. The husband protested. Husband अपने आप को बचाता है। Vehemently here meaning is strongly. मुल्ला नसरुद्दीन this is going too far. और मुल्ला नसरुद्दीन को कहता है कि अब ये बहुत हो गया। We cannot have that. हम ये चीजें नहीं रख सकते हैं। You can take it with you. Then Nasruddin replied, "But you signed the contract, good neighbor. As a good neighbor, you have signed my contract. Okay. Well, we will see about that. हम इसके बारे में सोचेंगे. Let us have the council of the elders make a ruling. यानी हमें अब यहाँ पर काउंसिल ऑफ द एल्डर्स का मीनिंग होता है हमें अब पंचायत बुलानी होगी। तुम बहुत उसका फायदा उठा रहे हो, एडवांटेज उठा रहे हो, said the neighbor. Soon an assembly of all the wise men of the village had been convened, and the neighbor explained the situation while smearing the few wisps of his once bristling mustache across his upper lip as though the sprout of hair offended him. Now there were the assembly with the wise men. बहुत सारे लोगों के साथ जो वाइज पर्सन होते थे, गांव के जो पंचायत होती थी, उनको बुलाया गया। कन्वेंटेड हियर मीनिंग केम टुगेदर फॉर द फॉर्मल, यानी एक साथ इकट्ठा किया गया। एंड नसरुद्दीन ने एक्सप्लेन किया अपनी बात को कि मैंने घर सेल किया था, बट एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि जो घर में नेल लगी हुई वो नेल मेरी ही रहेगी, मैं हमेशा उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मैं वर्शिप करने जाया करूंगा। द मुल्ला सिंपली प्रेजेंटेड द कॉन्ट्रैक्ट। अब मुल्ला ने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया विदाउट अटरिंग अ वर्ड इन हिज डिफेंस, और बिना कुछ बोले अपने डिफेंस में। ओके, द वाइज मैन स्टडीड इट केयरफुली, और जो पंचायत में जो मेन पर्सन था उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे केयरफुली रीड किया। ही इवेंचुअली प्रोनाउंस्ड दैट द मुल्ला वाज परफेक्टली एंटाइटल्ड टू डू एज ही विश्ड विद हिज नेल, और उसने बाद में क्या कहा, डिक्लेयर कर दिया। प्रोनाउंस हियर मीनिंग डिक्लेयर, दैट एंटाइटल मीन हैड अ राइट, कि मुल्ला का राइट है कि वो उस नेल पर वर्क कर सकता है, बिकॉज द नेबर हैड साइंड द कॉन्ट्रैक्ट पेपर। There was nothing in the contract that restricted how to nail should be worshipped, कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि मुल्ला को मना किया जाए उस नेल की वर्शिप करने के लिए। The case was therefore dismissed, केस को डिसमिस कर दिया गया। एंड द नेबर वेंट होम डिजेक्टेड, और हार कर नेबर वहां से चले गए, क्योंकि अब कुछ नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। अब नेबर भी बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। After long arguments with his wife and the sleepless nights, that he begged the mullah to buy his house back.
अब बहुत सारे डिस्कशन होने लगे वाइफ हस्बैंड वाइफ के बीच में, और लास्ट में क्या किया, मुल्ला से उन्होंने माफी मांगी और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना घर वापस ले लीजिए एट द बार्गेन प्राइस, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में। नसरुद्दीन एग्रीड एंड दे मूव्ड आउट एज क्विकली एज पॉसिबल, और वो वहां से चले गए जितना जल्दी जाना था। द मुल्ला वंस अगेन वॉज एबल टू एंजॉय हिज हाउस एंड हिज नेल, मुल्ला वंस अगेन उसने अपने घर को अच्छे से ले लिया, एंड हैविंग मेड अ टाइडी सम ऑफ मनी, और बहुत ही अच्छे अमाउंट में उस घर को वापस ले लिया। ओके, तो हियर व्हाट वी गेट that how mullah's presence of mind worked, कि मुल्ला के प्रेजेंस ऑफ माइंड ने कैसे वर्क किया। घर तो बेच दिया बट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक छोटे से नेल के ऊपर, जिससे क्या हो गया, मुल्ला वॉज एबल टू अगेन लेट हिम हाउस, ओके, कि वो अपना वो घर वापस लेने के लिए सक्सेसफुल रहा। So class, here I have a video, animated video to get the story more better. Okay, have a look. Mullah Nasruddin and the nail. Mullah Nasruddin was not interested in material comfort. He was always engaged in spiritual pursuits. Soon, he faced financial difficulties and decided to sell his ancestral home. Taking advantage of this situation, his crooked neighbor offered a pitiful price for Mullah's house. Blessing him, Mullah Nasruddin handed him a contract with a little clause mentioned in it. According to the clause, Mullah Nasruddin would be allowed to keep ownership of a nail that was sticking on the wall of the living room and do whatever he wanted with it. The neighbor agreed with the clause in the contract and signed it. After a month, one evening, Nasruddin came to worship his nail. He bowed in front of the nail and hung his turban on it. After 2 weeks, Nasruddin turned to hang a scarf on the nail. A week later, he returned once again and hung his coat on the nail. The next day he had come to hang a sack full of cow dung. The neighbor and his wife could not tolerate this anymore. So they headed to the council of elders for a ruling. They dismissed the case against Mullah. The neighbor begged Mullah to buy his house back at a bargain price. Nasruddin agreed. Using his common sense and presence of mind, Nasruddin not only got back his house and nail, but he had made a tidy sum of money too. So we should always use our presence of mind to solve the most difficult situations. Mullah Nasruddin and the nail. Mullah Nasruddin was not interested in material comfort. He was So I hope you enjoyed this story about Nasruddin and his nails. So class, in our next class, we'll be continuing with the chapter, with the question answers and word meaning and work exercises. Okay, till then, stay safe and take care of yourself.